Hello everyone. So today I'll be discussing the set that I shared in most of my social media channels yesterday. Right. I think many of you have tried this set, right, prior to seeing the solution. I'm going to do an experiment today. I'm going to create this video solution as a faceless video solution. As you can see, there is no camera. You cannot see me in the solution, right? So you will just listen to the explanation part, right? तो आप मुझे नहीं देख पाओगे, आपको बस solution दिखेगा, ठीक है? Now I want a serious feedback from all of you, ठीक है? Whoever is going to watch this video solution, after you watch this solution, please do write in the comment section कि आपको कौन सा ठीक लगा, फेसलेस वाला वीडियो जो ये है या फिर जो फेस मतलब विथ कैमरा वाला वीडियो सॉल्यूशन जो पहले सारे आई थिंक ऑल द प्रीवियस वीडियोस आर विथ कैमरा, राइट? सो विच इज बेटर? प्लीज टाइप इन दैट एंड yes, overall I think around 3 practice sets and CAT 2024 slot 1 के काफी sets, right, have been uploaded to the channel. I want some feedbacks from you guys. Comment section में आपका कोई भी feedback हो कि sir do this, try to work on this, improve this. See, everyone is learning at every stage. If someone says कि yes I know everything, मुझे कुछ सीखना नहीं है, then that's totally wrong, right? At every point of life, everyone learns something, keeps on learning something. So yes, creating these video solutions and all, uploading to YouTube, and this process I am new to the online process. So any feedback from you guys, it will be welcomed, right? So I'll try to apply those and I'll try to make necessary changes whichever required, ठीक है? बट ये तो डेफिनेटली आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जो भी ये वीडियो देखेगा, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज इतना डाल दो कि फेसलेस वीडियो अगर आपको फेसलेस मतलब दिस वीडियो सॉल्यूशन इफ यू थिंक इट्स गुड, फेसलेस वाला टाइप इन फेसलेस इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू फील नो सर विथ कैमरा वाला जो सोल्यूशन आपने बनाया वो बेटर है, तो विथ कैमरा आप कमेंट सेक्शन में डाल देना. और कोई भी मतलब फीडबैक हो आप प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, राइट? I like to see feedbacks, ठीक है? चलो, so let's move to the set. What we have, 4 friends, Ayan, Bhavya, Charan and Diya, each reported their annual salary as 20 lakhs, 50 lakhs, 70 lakhs and 90 lakhs respectively. Okay, ठीक है, तो उनका reported the salary that they reported, it is given respectively. That means Ayan is 20 lakhs, right? So we have Ayan, we have Bhavya, we have Charan, we have Diya, right? So their reported salaries are 20 lakhs, 50 lakhs, तो ये इन lakhs है, ठीक है? So their reported salaries are 20 lakhs, 50 lakhs, 70 lakhs and 90 lakhs. ठीक है, दे तो दिया, फिर दिक्कत क्या है? चलो देखते दिक्कत क्या है. However, none of these figures represents their actual salary. अच्छा, so ये जो उन्होंने रिपोर्ट किया सैलरीज, ये उनके एक्चुअल सैलरीज नहीं है. झूठ बोला सबने, राइट? ऑल ऑफ देम आर लायर्स, बाइनरी लॉजिक के लायर्स, राइट? ठीक है. द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट देयर ट्रू इनकम्स. फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ऑल एक्चुअल सैलरीज आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 10 lakhs. ऑल एक्चुअल सैलरीज आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 10 lakhs. ठीक है, फाइन. तो एक्चुअल सैलरी का कॉलम बनेगा, एक्चुअल सैलरी का एक कॉलम बनेगा, ठीक है? दैट इज ऑल्सो इन लैक्स. ओके, फाइन. तो एक्चुअल सैलरी जो भी आएंगे 10 lakhs के इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, लाइक 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs एंड सो ऑन, ठीक है? ओके. नन ऑफ द फ्रेंड्स रियल सैलरीज इज इक्वल टू एनी ऑफ द रिपोर्टेड अमाउंट्स. मतलब इनकी जो एक्चुअल सैलरीज है वो इनमें से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है.
मतलब ना किसी का 20 lakhs होगा, ना किसी का 50 lakhs होगा, ना किसी का 70 lakhs होगा, ना किसी का 90 lakhs होने वाला है. ओके. The difference between any reported salary and the actual salary is at most 30 lakhs. अच्छा, तो रिपोर्टेड और एक्चुअल सैलरी के बीच में जो मैक्सिमम डिफरेंस है 30 लाख तक का डिफरेंस रहेगा. फॉर एग्जांपल अयान, व्हाट कैन बी एक्चुअल सैलरी ऑफ अयान? अगर 20 से कम पकड़े तो कम से कम 10 lakhs. ठीक है, 20 तो हो नहीं सकता, इट कैन बी 30 lakhs, plus 20 it can be 40 lakhs, plus 30 it can be 50 lakhs, because it is given that the maximum difference between the reported and actual salary is 30 lakhs. तो अगर 20 लाख रिपोर्टेड है तो नीचे 10 से तो हम नीचे जा नहीं सकते और ऊपर ज्यादा 50 तक ही जा सकता है. बट यहां पे 50 lakhs होगा नहीं. क्यों? बिकॉज 50 lakhs is one of these values and it was informed that none of the actual salaries is equal to 20, 50, 70 और 90 lakhs. तो 50 lakhs का सिनेरियो वैसे ही कैंसिल हो गया. ठीक है, चलो भव्य के लिए देखते हैं व्हाट आर द पॉसिबल एक्चुअल सैलरीज. भव्य के लिए चलो 30 lakhs पहले नीचे चलते हैं. तो 20 lakhs पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि 20 lakhs इज ओवर हियर, राइट. अच्छा, 20 नहीं होगा, देन इट विल बी 30 lakhs. ओके, पॉसिबल. 40 lakhs पॉसिबल. 50 होगा नहीं. 60 lakhs पॉसिबल. 70 होगा नहीं बिकॉज 70 इज अवेलेबल हियर, राइट. सो 80 lakhs. ठीक है, तो भव्य के लिए ये आपके 4 सिनेरियो, 30, 40, 60 एंड 80. ठीक है, देन चरण के लिए देखते हैं क्या है. ठीक है, तो 70, 30 नीचे चलते हैं. 30 नीचे मतलब 40. ओके, देन 50 होगा नहीं. 60, 70 होगा नहीं. 80 एंड 90. अच्छा, 90 भी पॉसिबल है नहीं बिकॉज 90 इज अवेलेबल ओवर हियर. ठीक है, देन 100. ठीक है, तो चरण के लिए ये पॉसिबल सिनेरियोज हैं. ठीक है, देन फॉर दिया 30 नीचे चलते हैं. 30 नीचे चलेंगे तो 60. ओके, 70 होगा नहीं, राइट. देन 80. ठीक है, 90 होगा नहीं. ओके, देन 100. फाइन. 110. ओके, 120. ओके, तो दिया के लिए ये सारे पॉसिबल सिनेरियोज हैं. दिया के लिए दीज आर द पॉसिबल सिनेरियोज. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन. लेट्स चेक द रिमेनिंग कंडीशंस. So we did check the first condition, second condition and the third condition. Okay. The friend who claimed to earn 20 lakhs. Okay. The friend who claimed to earn 20 lakhs. मतलब reported the 20 lakhs. Who is that person? Ayan. Actually earns less than the one who claimed 70. अच्छा. आयन का जो एक्चुअल सैलरी है वो चरण से कम होना चाहिए. ओके, फाइन. So we'll write it here. Ayan's actual salary is less than Charan. ठीक है, okay, done. Then what we have? The combined real salaries of the ones who claimed 20 lakhs and 70 lakhs. अच्छा, जिन्होंने 20 लाख और 70 लाख रिपोर्ट किया, उनका जो combined actual salary है is equal to the actual salary of the one who claimed 90 lakhs. Okay, fine. So who claimed 20 lakhs and 70 lakhs? Ayan and Charan. तो इनका जो एक्चुअल सैलरी का जो टोटल होगा इज इक्वल टू द एक्चुअल सैलरी ऑफ द वन हु क्लेम 90 lakhs. मतलब आयन और चरण का जो टोटल सैलरी होगा इज इक्वल टू दिया सैलरी, राइट. सो लेट्स राइट इट हियर. दिया's एक्चुअल सैलरी इज इक्वल्स टू आयन्स एक्चुअल सैलरी प्लस चरण's एक्चुअल सैलरी. ओके, ठीक है, देखते हैं. देन व्हाट वी हैव? The ones who reported 50 lakhs and 70 lakhs. Okay, 50 lakhs and 70 lakhs में भव्य एंड चरण के बारे में बात हो रही है. earned a total of 100 lakhs. अच्छा, भव्य और चरण मिलके, दोनों ने मिलके टोटल 100 मतलब एक्चुअली अर्न मतलब उनका जो एक्चुअल सैलरी है द टोटल शुड बी 100 lakhs. अच्छा, तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? 30 के साथ कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? भव्य का अगर 30 है तो चरण का 70 होना चाहिए. नहीं है, मतलब 30 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ओके. देन 40 के साथ हो सकता है. हाँ, 40 के साथ 60 हो सकता है. ठीक है, होल्ड करते हैं. 60 के साथ कुछ हो सकता है. 60 के साथ ये 40 हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, उसको भी होल्ड करते हैं. यहाँ अगर 80 लिया तो 80 के साथ कुछ हो सकता है. नहीं, आई डोंट सी दैट, राइट. मतलब ये आपका 80 सिनेरियो भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो 40 के साथ 60 और 60 के साथ 40 ये मैप हुआ. मतलब चरण का भी 80 कैंसिल एज वेल एज 100
कैंसिल। तो भव्य के 2 सिनेरियो कैंसिल हो गए, चरण के भी दोनों सिनेरियो आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट कंडीशन? बेस्ड ऑन द लास्ट कंडीशन कि उनका जो एक्चुअल सैलरी है दैट इज उनका जो एक्चुअल सैलरी का जो टोटल है दैट शुड बी 100 lakhs। ओके, सो दैट मीन्स हियर Charan has 2 cases, right? Either Charan can be earning 40 lakhs और Charan can be earning 60 lakhs। ठीक है, 2 केसेस हैं। ठीक है, देखते हैं। तो अगर Charan 40 lakhs है तो आयन के पॉसिबिलिटीज क्या है? 10, 30 और 40, राइट? तो आयन के पॉसिबिलिटीज 10 lakhs, 30 lakhs और 40 lakhs है, राइट? बट 40 lakhs तो होगा नहीं बिकॉज आयन एक्चुअल सैलरी इज लेस देन Charan's एक्चुअल सैलरी। ठीक है, तो आयन का 40 lakhs तो नहीं होगा अगर Charan का 40 है। मतलब आयन के 2 केसेस हैं, इधर इट कैन बी 10 lakhs और इट कैन बी 30 lakhs। तो आयन का अगर 10 lakhs हुआ दैट मींस दिव्या का टोटल 50 होना चाहिए, जो कि दिव्या का सिनेरियो है ही नहीं। दिव्या's लोएस्ट पॉसिबल सैलरी 60 lakhs, राइट? अच्छा, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, क्या आयन को हम 30 दे सकते हैं? ओके, इफ आई गिव 30 lakhs टू आयन देन दिव्या's टोटल सैलरी टर्न्स आउट टू बी 70 lakh, which is also not possible because Divya does not have a 70 lakh scenario. So OB cancel. That concludes Charan's 40 lakh scenario is not possible. Right? So Charan's 40 lakh scenario is also ruled out. Because Charan's 40 lakh scenario ये जो 2 कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ओके। सो अगर चरण का 40 कैंसिल हो गया दैट मींस Charan's only possible scenario is 60 lakhs, right? And I know that Charan and Bhavya together it should be 100 lakhs. That means Bhavya's only possibility is 40 lakhs. तो भव्य का भी जो 60 लाख का सिनेरियो था वो भी आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो भव्य's एक्चुअल सैलरी इज 40 lakhs, Charan's एक्चुअल सैलरी इज 60 lakhs। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स चेक व्हाट आर द पॉसिबल सैलरीज ऑफ दिव्या। अच्छा, आयन अगेन कैन टेक 10 और कैन टेक 30 और कैन टेक 40। So if Ayan takes 10, Diya's total salary is 70 lakhs, which I do not have, right? So ruled out. If Ayan takes 30, then Diya's total salary is 90 lakhs, which is also not there. That means that is also ruled out, right? So the only possible scenario for Ayan is now 40 lakh scenario. So 60 plus 40, तो दिया का टोटल कितना आ जाएगा? दिया का टोटल आ जाएगा आपका 100 lakhs, right? That means दिया के भी ये सारे कैंसिल and Ayan it will be 40. So 10 cancel, 30 cancel. Done. So the actual salary of these 4 persons, actual salary अगर इधर लेके आ जाए तो आयन का 40 lakhs है, then भव्य का भी 40 lakhs है, then चरण का 60 lakhs है, then दिया का आपका 100 lakhs है, right? So I think our job is done. We do not have any other condition or any other task to achieve over here. It was a good comfortable थोड़ा क्वांट बेस्ड सेट था। स्टार्टिंग में लगा ये बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट ज्यादा कुछ था नहीं, राइट? ओके, लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। टोटल ऑफ द एक्चुअल सैलरीज, टोटल ऑफ द एक्चुअल सैलरीज कितना? 240, राइट? टोटल ऑफ द एक्चुअल सैलरीज विल बी 240 lakhs. ओके, देन हाउ मेनी ऑफ द फ्रेंड्स हाइक्ड देयर रिपोर्टेड सैलरी एज कंपेयर्ड टू देयर एक्चुअल सैलरी? अच्छा, मतलब रिपोर्टेड जो है एक्चुअल से ज्यादा कितने लोगों ने बताया? भव्य ने बताया और चरण ने बताया। क्योंकि आयन का एक्चुअल तो 40 था, उसने कम करके बोला, राइट? दिखाना नहीं था उसको, इसलिए कम करके बोला। दिया का भी 100 था, उसने कम करके बोला। बट भव्य और चरण को दिखाना था तो इसलिए कम था सैलरी, लेकिन ज्यादा बोला उन्होंने। भव्य का 40 था और हाइक करके उसने 50 बताया, चरण का 60 था, हाइक करके 70 बताया। सो 2 persons hiked their reported salary as compared to their actual salary. Okay, what is the maximum difference between the actual salary of any of the 2 friends? तो मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो मैक्सिमम इज 100 lakhs, मिनिमम इज 40 lakhs, so the difference is 60 lakhs. This is the maximum difference between the actual salary of any of the 2 friends. Okay, if you form a group by selecting 3 of the 4 friends, अच्छा 3 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एक ग्रुप बनाना है, then the total reported salary and the total actual salary turns out to be same. अच्छा, तो मुझे ऐसे 3 लोग उठाने हैं जिनका टोटल रिपोर्टेड सैलरी और जिनका टोटल एक्चुअल सैलरी क्या होने वाला? सेम होने वाला है, ठीक है? तो which of the 4 friends is not selected in this group? ठीक है, you can go by the options. Suppose if I don't select Ayan, first option is Ayan, तो हम आयन को सिलेक्ट नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे? आयन को सिलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? आयन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ओके?
सो कैन दीज थ्री सेटिस्फाई द कंडीशन? देखते हैं उनका रिपोर्टेड कितना था, 50, 70, 120, 120, 90, 210। अच्छा, एक्चुअल 210 है क्या? नहीं, एक्चुअल तो 200 है, 40, 60, 100, 100, 100, 200। एक्चुअल तो इनका 200 है, लेकिन रिपोर्टेड 210 है। तो द क्वेश्चन इज आस्किंग कौन सा बंदा ग्रुप में नहीं है। सो इफ आयन इज नॉट इन द ग्रुप, तो ये जो ग्रुप बनेगा वो सेटिस्फाई नहीं होने वाला कंडीशन, राइट? तो आयन ऑप्शन तो होगा नहीं। अच्छा, ये भव्य इज नॉट इन द ग्रुप, 20, 70, 90, 90, 90, 180, बट इनका यहाँ पे कितना 40, 60, 100, 100, ये तो 200, ये भी मैच नहीं हो रहा है। तो मतलब भव्य इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। ठीक है, ओके। इफ चरण इज नॉट इन द ग्रुप, 40, 40, 80, 100, 180, अच्छा 20, 50, 70, 90, 160, नहीं, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अच्छा, इफ दिया इज नॉट इन द ग्रुप, दैट शुड बी द आंसर, दैट इज द लास्ट ऑप्शन दैट आई एम हैविंग। तो 140, यहां पे भी देखो ये 140, राइट? यस, दिस सेटिस्फाइज। तो मतलब इन तीनों का अगर ग्रुप बनता है तो इनका जो रिपोर्टेड का टोटल है और इनका जो एक्चुअल का टोटल है, बोथ आर सेम। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी ओवर हियर। ओके, चलो लेट्स हैव ए लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। इफ यू फॉर्म ए ग्रुप बाय सिलेक्टिंग 3 of the 4 friends, अच्छा, then which of the following cannot be the actual total salary of the group? अच्छा, आप कोई भी 3 को लेके अगर ग्रुप बना रहे हो तो उनका जो टोटल सैलरी है इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? लेट्स गो बाय द ऑप्शंस। फर्स्ट पॉसिबिलिटी 180 हो सकता, 180 मैंने अगर इन दोनों को लिया और इसको लिया, राइट? सो इफ आई टेक आयन, भव्य एंड दिया, तो 180 टोटल हो सकता है ग्रुप का, राइट? ग्रुप ऑफ ए 3। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। कैन नॉट भी पूछा हमें, राइट? अच्छा, 200 हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता। इफ आई टेक दिस 3, ठीक है, एक्चुअल सैलरी 200 हो जाएगा। 140 हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, इफ आई टेक दिस 3, राइट? अच्छा, 170 हो सकता है क्या? 170 के लिए कॉम्बिनेशन तो मेरे को दिख नहीं रहा। आई डू नॉट सी ए कॉम्बिनेशन फॉर 170, दैट मीन्स माय आंसर विल बी 170. So if I form a group by taking any three of them, 170 cannot be my answer. Okay. So I hope overall it was a moderate level set. ठीक है, good set, moderate level set. ठीक है. Now a sincere request to all of you, share your feedback in the comment section. I'm expecting some feedbacks in the comment section, right? And if you like the way I explain, ठीक है, तो please like the video and subscribe. That will motivate me obviously to keep on doing this. ठीक है, I'll bring in more sets and all. ठीक है, so please like and do subscribe to the channel. Thank you very much.